everyone. Good afternoon. Hey guys, are you all able to hear me? Welcome to this session where we talk about how is your percentile score calculated. Now, a lot of you have at one point in time asked others or yourself a question that how many questions should I answer to get this much percentile, or what will be the conversion rate, or what will be the cutoff, what would be the minimum number of questions required to get the score. Yes, so this session is going to answer all of those questions that you've had in your mind. Hello Saf. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai with over 7 years of experience, and I have trained over 2.5 lakh students. This is my Telegram Telegram group. If you haven't Telegram group. If you haven't already joined this, please go ahead and do that. Quickly join this group, okay? अरे सैफ क्या बोल रही भाई, पता नहीं. I highly doubt अगर टेस्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन, इफ यू एवर आस्क्ड योरसेल्व्स और अदर्स दिस क्वेश्चन to get so and so percentile, 90th percentile, 95th percentile, 99th percentile, how much should I score? Or to get this much percentile, how many questions should I answer? How many questions should I answer correctly? How many questions should I attempt? So my reaction when somebody asks this question is literally this. This is how I feel when somebody asks me this question, because guys, you need to understand कि ये आपके स्कूल या कॉलेज के जैसा नहीं है. This is not your test where your score is calculated or your percentage is calculated irrespective of whatever others are doing. ये ऐसा नहीं है. It's not like your school के let's say 5 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स के, और आपके टोटल मार्क्स 300 आए तो आपका स्कोर 60% है. Yes, प्लीज अंडरस्टैंड, परसेंटेज और परसेंटाइल जो है दोनों कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स है. एंड यस, योर रॉ स्कोर डज मैटर. आपका जो स्कोर बनता है, आप जो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कितने आंसर्स आपके राइट आते हैं, उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है, बट दैट्स नॉट द ओनली फैक्टर. समझ में आ रहा है? यस, हेलो अभिषेक, गुड आफ्टरनून. अक्षय, yes Prince, I want to give CAT, but the weather I don't know what weather has in its mind today. नहीं दीपांशु, exactly उस समय पे नहीं, but yeah, you can get a rough idea about it. You can get a rough idea about your score. ठीक है? Now common misconception, biggest misconception is that कि अगर this is general throughout all the 3 slots, कोई भी स्लॉट का कोई भी पेपर में अगर मैं लेट्स से एंड अ लॉट ऑफ वीडियोस हैव आल्सो बीन मेड ऑन दिस, या कि अगर if I answer let's say 75 to 80% of the questions correct, my score will be throughout the thing, my score will be somewhere around 90+ percentile. Yes, this is not true. Yeah, आपका रॉ स्कोर जो है, yes, that does matter, but that's not the deciding factor. Please understand. Yeah, तो क्या होता है, normally you guys look at predictions. Yes, you go to some website, आप गूगल करके देखते हो CAT raw score to percentile conversion, score to percentile conversion, estimation, prediction, ये सब आप जाके देखते हो और उसमें कुछ लिखा होता है और आप उसको blindly believe करने लग जाते हो. A lot of people, especially in 2020, last year के पेपर में a lot of people flipped. Yes, क्योंकि जो स्कोर आया था, जो प्रेडिक्शन था, वो completely opposite. In some cases, a good enough score did not give a very good percentile, and in some cases, even decent score gave a very good percentile. Yes, so it all depends upon not just the raw score. It is one factor, of course. बट उसका जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले ये समझ लो कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है. यस, व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल? फॉर एग्जांपल,
let's talk about percentage first, ठीक है. अगर like I said 100 मार्क्स का पेपर है, yes, और 5 सब्जेक्ट्स है, तो मेरा टोटल स्कोर है 500 मार्क्स, ठीक है. एंड लेट्स से आई स्कोर्ड 300 मार्क्स टोटली. ओवरऑल मेरा स्कोर तीनों पांचों सब्जेक्ट का मिला के 300 मार्क है. तो मेरा परसेंटेज कितना होगा? आई स्कोर्ड 300 आउट ऑफ 500 विच इज व्हाट 60%, है ना. तो ये 60%, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग एवर सिंस स्कूल एंड कॉलेज ऑल्सो. यस, इसमें और कोई फैक्टर मैटर नहीं करता, इसमें और कोई फैक्टर मैटर नहीं करता कि कितने लोग थे, क्या था, डिफिकल्टी लेवल था, अलग अलग स्लॉट थे, कुछ मैटर नहीं करता. बट व्हेन इट कम्स टू परसेंटाइल, yes, when it comes to percentile does not give you a percentage of your marks. Percentile does not give you a percentage of your marks. Percentile basically means what? It is a percentage of number of people who have scored less than your score, less than you. समझ में आ रहा है? ये इसका कैलकुलेशन है. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप यहां पे हो, यू आर हियर, ओके, एंड बिलो यू 80% ऑफ द पीपल हैव स्कोर्ड स्कोर्स लेस देन योर्स. आपसे नीचे, आपसे कम 80% पीपल का मार्क्स आया. सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेकिंग एज अ रैंडम नंबर, ठीक है, लेट्स से कि आपका योर स्कोर वाज 65. Yes, and there are 80% of the people. Let's say this is total 20 people overall. I'm just giving a random assumption. ठीक है, let's say this is 20 people. तो there are 16 people जिनका स्कोर 65 से कम है, और आपका जो रैंक है, your rank is greater than 16 other people's rank. Yes, तो आपका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल है. तो इसका 80 परसेंटाइल का और इस 65 का कोई डायरेक्ट लिंक है क्या? 80 परसेंटाइल का और आपका जो स्कोर है 65 का, उसका कोई डायरेक्ट लिंक है? समझ गए? आई होप यू अंडरस्टूड दिस. परसेंटाइल, परसेंटेज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. ये 65 का इस 80 के साथ कोई संबंध नहीं है. तो लेट्स से अगर सारे तीन स्लॉट है ना, देयर आर 3 स्लॉट्स. Yes, there are 3 slots. I'm not saying this will happen, but let's for an example assume कि slot 1 was very easy. Slot 1 जो था वो बहुत easy था, slot 2 तो था वो थोड़ा सा medium level का था, और slot 3 जो था वो बहुत hard था. ऐसा नहीं है. This is let me put a disclaimer. This is only an example. आप लोग ये रख के बोलोगे कि अरे सर मेरा 3rd स्लॉट है, मेरा बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्या करूँ, स्किप कर दूँ क्या, ड्रॉप कर दूँ क्या, अगले साल करूँ. दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है. तो अभी स्लॉट 1 वाले लेट्स से आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस उन्होंने 15 करेक्ट कर लिए. स्लॉट 2 वाले आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस उन्होंने 10 करेक्ट कर लिए. स्लॉट 3 वालों ने सिर्फ 5 ही करेक्ट कर पाए. तो फिर मैं उनको स्कोर ऐसे ही दूंगा क्या? इसको 15 इंटू 3 45 मार्क्स, इसको 10 इंटू 3 30 मार्क्स, इसको 5 इंटू 3 15 मार्क्स ही दूंगा? बवाल मच जाएगा भाई, लोग कॉलेज वॉलेज गिरा देंगे, आग वाग लगा लेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये इतने क्वेश्चन करने पे इतना परसेंटाइल आएगा, ऐसा कुछ. प्लीज डोंट गिव दैट मिसकंसेप्शन एट ऑल. अंडरस्टूड? हाँ, करेक्ट दीपांशु. सो व्हाट दीज टेस्ट डू, जो टेस्ट में मोर देन 1 पेपर्स होते हैं, जैसे 3 अलग अलग स्लॉट है तो क्वेश्चंस भी अलग अलग होंगे. यस, सो 3 डिफरेंट स्लॉट्स, 3 डिफरेंट पेपर्स, सबका जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी अलग अलग होगा. इट वोंट बी द सेम. तो अगर डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है तो फिर ये दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्कोर ना, ये तो फिर बस रॉ स्कोर है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर रॉ स्कोर. इसको अब ये लोग क्या करेंगे? दे विल स्टैंडर्डाइज इट और दे विल नॉर्मलाइज दिस. ठीक है, नॉर्मलाइज करेंगे स्कोर को. दे विल पुट इट इन सच अ वे दैट कि अगर इजी है
तो उनको इतने आने चाहिए, मीडियम है तो इतना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल देयर विल बी लाइक अगर इजी क्वेश्चंस है, सारे इजी क्वेश्चंस है तो उस पे आधा, हाफ, इस पे है तो मे बी 1 मार्क, इसमें है तो मे बी 1.5 टाइम्स, ऐसे. जस्ट एन एग्जाम्पल. तो देखो इसमें अगर इफ यू गेट 1 हाफ तो इसका 22.5 होगा एक्चुअल स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर. अब ये मैं बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट व्हाट कैट डिसाइड्स. स्केल स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर बोलते हैं, ये मैं रैंडमली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. एंड इसमें मैं अगर 1 मार्क दे रहा हूँ या लेट्स से 0.75 मार्क्स दे रहा हूँ, ऐसा कुछ, तो दिस विल ऑल्सो बिकम अप्रोक्सीमेटली 22.5. इसमें अगर मैं आधा मार्क दे रहा हूं, मतलब आई एम गिविंग 1.5 टाइम्स, दिस विल ऑल्सो बिकम 22.5 मार्क्स. समझ में आ रहा अभी? तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्लॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आंसर्ड, आपका स्केल स्कोर तीनों केसेस में सेम ही है. राइट रोहानी, वो कैलकुलेशन, सी दैट कैलकुलेशन इज डन बाय कैट इटसेल्फ. यस, वो हमें नहीं बताते, दे डोंट टेल अस व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड इट, बिकॉज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पूरा पेपर कभी भी हार्ड नहीं होता है. नॉट एंटायर पेपर इज नेवर हार्ड, है ना. देयर विल बी सम एक्स्ट्रा एडेड क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, कोई कम हो सकते हैं इन केस ऑफ डिफिकल्टी. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. ओके, प्रिंस अभी वो भी डिपेंड करता है. प्रिंस दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ द पेपर इज सेट एंड ऑल दैट. ठीक है. तो ये जो पीपल ऑल्सो पैनिक, पीपल ये करके पैनिक हो जाते हैं कि फर्स्ट स्लॉट का डिफिकल्ट था तो सेकेंड स्लॉट भी डिफिकल्ट रहेगा, थर्ड स्लॉट भी डिफिकल्ट रहेगा. ऐसा नहीं है. और फर्स्ट स्लॉट इजी था तो सेकेंड और थर्ड स्लॉट भी इजी रहेगा, ऐसा नहीं है. डिफिकल्टी लेवल वेरीज, सब कुछ यहां पे वेरिएबल है. Yes, and that calculation should only be left up to them to do. आप सिर्फ अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दो. Do not let your performance get hindered because of these small things. Yes, जैसा आपने परफॉर्म किया है उस हिसाब से आपको स्कोर आएगा. Don't get involved into all this. But still, let me tell you how that calculation is done. First, it depends upon the number of candidates who are appearing for CAT. Yes. ऑन एन एवरेज 2.5 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं. 2.5 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं. लास्ट ईयर बहुत कम लोगों ने टेस्ट दिया था. लास्ट ईयर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल गेव द टेस्ट. यस, क्योंकि लास्ट ईयर क्या चल रहा था, पैंडेमिक चल रहा था. लॉट ऑफ सिटीज डिड नॉट हैव एक्सेस, अ लॉट ऑफ प्लेसेस पीपल कुडंट ट्रैवल, बहुत जगह पे रेड जोन कर रखा था, सो दे कुडंट मूव एंड ऑल दैट. आ रहा है समझ में? Yes, so 2.5 lakh students में से somewhere around 1.75 only turned up. I'm not sure of this number, but just saying. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अप्लाई करते हैं वो हमेशा देते हैं. People who apply, they back out in the last minute a lot of times. By their own wish or by some other reason, they back out. Just for an example, अभी चेन्नई में है, यहाँ पे पागलों की तरह बारिश हो रही है. Right, so if it floods because they are predicting a cyclone, they are saying there's a cyclone, तो अगर वो flood हुआ तो I won't be able to go. समझ में आ रहा है? So reasons within control or out of control, this number variable है, ये वाला variable है. तो unless and until CAT gives you a number के इतने लोगों ने टेस्ट दिया, when they give you a number के इतने लोगों ने टेस्ट दिया, you cannot calculate percentile at all. आ रहा है समझ में? Yes, this matters. इसके बिना आप नहीं कैलकुलेट कर सकते परसेंटाइल. हाँ नेहा, यहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे ऐसा ही है. So, and it's not only with the number of candidates. Yes, it's not only with the number of candidates that appear. One of the things is number of candidates. उन candidates का level भी आप डिपेंड करता है. Yes, उन कैंडिडेट्स का जो लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया? इज एवरीवन क्लियर विद दिस कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है आपका परसेंटाइल. नेक्स्ट इज योर स्केल्ड स्कोर, जो आपका रॉ स्कोर आता है. लेट्स से दिस इज योर रॉ स्कोर. लेट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि स्लॉट 1 वालों ने 100 क्वेश्चंस आंसर किए या 100 मार्क्स लाया, तो उनको जो स्कोर मिला वो 305 का था. यस, एंड इन स्लॉट 2 ऑल्सो लेट्स से दिस वाज द कैलकुलेशन.
बट लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल स्लॉट 1 का 300 मार्क लाने के लिए, स्लॉट 1 में 300 मार्क लाने के लिए मेरे को सिर्फ 95 क्वेश्चंस आंसर करने पड़े, बट स्लॉट 2 में 300 मार्क लाने के लिए मेरे को 97 क्वेश्चंस राइट आंसर करने पड़े। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस? बट दोनों में अल्टीमेटली मेरे को कितना मिल रहा है? 300 मार्क ही मिल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कैट, ये जनरल कोई भी टेस्ट का यही लॉजिक है। स्केल्ड स्कोर समझ में आया? इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स ने स्लॉट 1 में अटेंड किया, कितने एप्लीकेंट्स स्लॉट 2 में अटेंड किया। यस, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दैट। स्केल्ड स्कोर का कैलकुलेशन इज नेवर रिवील्ड, है ना? कैलकुलेशन जो है दैट इज नॉट रिवील्ड। ये किस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं हमें नहीं पता, बट व्हाट डज इट डिपेंड अपॉन? इट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, मतलब क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कंज्यूमिंग। कई बार पेपर बहुत लेंथी रहता है, राइट? लास्ट टाइम दिस इज व्हाट हैपेंड इन डीआई बहुत लेंथी था। यस, सो डिफिकल्टी लेवल पे मैटर करता है, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स गिविंग ईच स्लॉट। यस, तो स्केल स्कोर समझ में आ गया सबको? एंड देन बेस्ड ऑन द स्केल स्कोर, आपके रॉ स्कोर पे कोई रैंक का कैलकुलेशन नहीं होता है। प्रिंस ट्राई करके देखो भाई, ट्राई करके देखो। रॉ स्कोर का रैंक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रॉ स्कोर का रैंक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। रैंक आपका स्केल स्कोर पे बनता है, और उसमें भी बहुत सारा है। रैंक इज बेस्ड ऑन द स्केल स्कोर्ड ऑब्टेन, तो आपको जो स्केल स्कोर मिलता है उस पे आपको रैंक मिलता है, और उसमें भी बहुत पंगा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स, ठीक है? 100 मार्क्स इज द हाईएस्ट स्कोर। 100 मार्क्स, परसेंटाइल नहीं, 100 मार्क्स इज द हाईएस्ट स्कोर, एंड 4 पीपल गॉट 100 मार्क्स। 4 लोगों को 100 मार्क्स मिला, है ना? तो इन चारों लोगों का रैंक क्या होगा? ऑल 4 पीपल विल हैव द फर्स्ट रैंक। आ रहा है समझ में? सारे 4 लोगों का रैंक क्या होगा? फर्स्ट रैंक होगा। हाईएस्ट मार्क है ये, हाईएस्ट मार्क। यस, नेक्स्ट लेट्स से द नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क इज 99। नेक्स्ट हाईएस्ट मार्क इज 99। तो टेक्निकली अगर इनको फर्स्ट रैंक मिला है, तो जैसे यहां पे 5 लोगों को 99 मिला, तो इनको सेकेंड रैंक मिलना चाहिए ना, क्योंकि मेरा स्कोर तो सेकेंड है भाई। फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर 100 है, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर 99 है। नहीं, आपको कौन सा रैंक मिलेगा? 5th रैंक मिलेगा। यस, कैसे होता है देखो, अरेंज करेंगे उनको असेंडिंग में, तो पहला स्टूडेंट 100, स्टूडेंट ए 100, स्टूडेंट बी 100, स्टूडेंट सी 100, स्टूडेंट डी 100। आप अगर स्टूडेंट ई हो और आपको 99 मिला, तो आपका रैंक फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, आपका रैंक क्या हो जाएगा? 5th हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, so this 5th rank, this rank 5 will be shared by 5 people. E, F, G, H, I. ये पांचों लोगों में 5th रैंक शेयर होगा। यस, अगेन 98 मार्क्स। तो अब तो आप बोलोगे कि सर इसमें और इसमें कितना है? 2 मार्क का तो फर्क है, बट रैंक क्या हो जाएगा आपका? यू विल गेट द 6th रैंक, यू विल गेट द 3rd रैंक, you will get the 10th rank. Got it? मतलब 9 people आपके आगे है तो 10th rank. दीपांशु 11 नहीं, 10. 4 people then 5 people, 9 people, मतलब आपका रैंक ऊपर से 10th है। कृष्णा अभी मेरे को कैसा फील हो रहा पता है? ऐसा मेरे दांत में ये वाला इमेज आप सिर्फ देख नहीं सकते, आप सिर्फ सुन नहीं सकते, आप फील भी कर सकते हो। आपके बॉडी में दांत अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। एवरी टाइम समबडी आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये मेरे साथ होता है। क्या हो गया भाई? कृष्णा 90 परसेंटाइल लाने के लिए कम से कम 500 मार्क लाओ भाई, करो।
कुछ भी करते हो यार आप लोग। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि आपका रॉ मार्क और परसेंटाइल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अभी लेट्स से कि आपके कैट 2021 में लेट्स से सारे दिमाग वाले लोग ही है, बहुत होशियार लोग हैं, और यहाँ पे 100 मार्क्स लाने वाले 40 लोग हो गए, 99 मार्क्स लाने वाले 50 लोग हो गए, तो आपका रैंक क्या होगा? 91st रैंक होगा। यू विल गेट अ 91st रैंक। मतलब आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो इस पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? यस, दिस इज योर कैलकुलेशन। परसेंटाइल ऐसे कैलकुलेट होता है। यस, सो लेट्स से इफ 10,000 पीपल हैव अपीयर्ड, जस्ट अ रैंडम नंबर, अगर 10,000 लोग अपीयर किए हैं और आपका रैंक जो है वो 90th रैंक है, लेट्स से your rank is 90th rank, so this is n total number of people appearing and this is r आपका रैंक। तो आपका परसेंटाइल जो होगा वो क्या होगा? it will become 10,000 minus 90 upon 10,000 into 100। समझ में आ रहा है? so how much will you get? yours will be 9,910, एक 9 एक्स्ट्रा लगा दिया, 9,910 upon 10,000 into 100। समझ में आ रहा है? तो जीरो कैंसल, यू विल गेट व्हाट? 99.1 परसेंटाइल। 99.1 तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट परसेंटाइल। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो दिस डायरेक्टली ये नहीं डिसाइड करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पीपल एंड योर रैंक। करेक्ट, नूब मेंटालिटी, एकदम सही पॉइंट। तो ये सब जो बातें हैं कि कितना परसेंटाइल लाने के लिए कितना क्वेश्चंस आंसर करना पड़ेगा, कितना राइट करना पड़ेगा, सर मेरे को नाक को ऐसे पकड़ के लिखना है या ऐसे पकड़ के लिखने पे ज्यादा मार्क्स आएगा, सर मैं एक पाँव ऊपर रख के लिखूं तो ज्यादा मार्क्स आएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछना बंद करो, अपने प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सेशन में एक्चुअली नहीं करने वाला था, बट a lot of people have asked me over the week। पूरा साल तो पूछे ही हैं, उनको तो मैंने समझा दिया, बट ये लास्ट वीक में इतने लोग एंजाइटी में पूछे कि सर अब मैं क्या करूं, मेरे को कितना करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैसे आएगा मेरे को मार्क्स, सर मेरा शादी नहीं होगा, सर मेरे को दहेज नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो यार? ठीक है ना, रिलैक्स करो, ये सब आपके हाथ में नहीं है। All of this depends upon a lot of things. Now for example, अगर अभी बारिश नहीं रुका और मैं टेस्ट नहीं दे पाया तो आपका तो एक रैंक ऊपर बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहे हो? अगर बारिश नहीं रुका और मैं नहीं दे पाया तो आपका तो रैंक ऊपर बढ़ जाएगा ना, वरना मेरे कारण आपका रैंक नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? So lot of things matter here. Yes, and also another question people bugger me with is cut off। सर इस साल कट ऑफ कितना रहेगा? सर IIM में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों को काटना पड़ेगा? कट ऑफ क्या है? कट ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर ईयर्स पेपर। यस, दैट पर्टिकुलर ईयर्स परफॉर्मेंस। प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू रैंडम पॉडकास्ट जहां पे लोग बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो, हो जाएगा, परसेंटाइल बढ़ जाएगा। लास्ट 2 दिन में परसेंटाइल को कैसे बढ़ाया जाए, लास्ट 1 दिन में क्या मंत्र बोलने से परसेंटाइल बढ़ता है, एग्जाम के दिन सुबह उठ के गौमूत्र में कुत्ता मूत्र मिला के पीने से क्या होता है, ये सब में मत गिरो। These are all hacks, do not fall for all of that, okay? Focus on what is in your hands and do not focus on things apart from that। समझ में आया? दीपांशु बोल रहे मत दो, रोहनी भी बोल रहे मत दो। अरे नहीं प्रिंस, ऐसा नहीं है। प्रिंस मेरे को कब से VARC का पूछ रहे, भाई मेरा VARC अच्छा ही है। I am taking Quant LRDA does not mean my English is bad. Okay, my language skills are at par with my math skills. Please understand that. ये अपना कॉमन मिसकंसेप्शन हो गया कि सर अगर मेरा टीचर मैथ पढ़ाता है तो उनको इंग्लिश नहीं आता होगा, तभी तो मैथ में गए हैं।
और जिनको इंग्लिश आता है उनको मैथ नहीं आता होगा, इसलिए तो वो इंग्लिश में गए हैं। ये मिसकंसेप्शन स्कूल टाइम तक ही रखो, उसके आगे मत रखो, ठीक है? मुझे समझ में आया। और अगेन हाँ मैं इंजीनियर हूं तो क्या, मैं इंजीनियर हूं तो क्या, इंजीनियरिंग का और इसका कोई संबंध नहीं है भाई। ये लो नंदिनी, नंदिनी क्या फेंकू नंदिनी, आप कहाँ पे रहते हो? एड्रेस भेजो थोड़ा। क्या फेंकू इन पे, क्या फेंकू, क्या फेंकने पे कम डैमेज होगा भाई? कुछ तो फेंकना पड़ेगा। क्या Nandini, if your geometry and arithmetic is good, you will get 101th percentile. 101st भी नहीं बोल रहा अब तो मैं, 101th percentile, क्योंकि अब मैं इसमें क्या ही लॉजिक बताऊं। क्या करते हो यार? पीछे से आके पूरा दिन का मूड खराब कर दिया मेरा पूरा साल गंदा हो गया भाई। सर को सब नहीं आता, दीपांशु कहां फंसा रहे हो यार? आप तो मेरे को केवल ज्ञानी बना रहे हो, मेरे को सब नहीं आता, मेरे को जो आना चाहिए वो आता है बस। हाँ एग्जैक्टली धनुष। अरे स्क्रैचिंग हेड छोड़ो, हेड निकाल के फेंक दूं क्या करते हो आप लोग यार? ठीक है। कैन यू शेयर द फीलिंग व्हेन यू सी द स्टूडेंट यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सीटिंग नेक्स्ट टू यू? अरे ऐसा मैं डिस्गाइज में जाएगा ना, मैं पूरा क्लीन शेव करके बाल कलर करा के फिर जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन है। डन। अच्छा इसमें एक और चीज है, अब मेरा एक डाउट है, अकॉर्डिंग टू मैथ के हिसाब से 100th percentile, इज इट पॉसिबल? Is it possible that you could get 100th percentile? आपका 100th percentile कब होगा? 100th percentile तब होगा जब आपका रैंक 0 हो। When your rank is 0, तभी n divided by n minus 0 by n into 100, that means 1 into 100, 100th percentile होगा। समझ में आ रहा है? Yes, आपका रैंक 0 कब होगा? Even if you forget getting 0 marks, even if you get negative marks, आपका रैंक 0 नहीं होगा। अगर your rank will be 0 if the maximum marks of the test, let's say, is 100 and your score is 110, 101, तब आपका रैंक 0 होगा। समझ में आ रहा? कि आप इस लीग से बाहर हो, आप इन दुनिया से बाहर हो, आप पुरुष नहीं आप महापुरुष हो, वैसे वाला केस होगा, तब आपका रैंक 100th percentile आएगा। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू मैथ 100th percentile इज नॉट पॉसिबल, बट येट कैट में लोगों को 100th percentile आता है। कैसे? येट पीपल स्टिल गेट 100th percentile इन कैट। कैसे? हाउ? कोई बताएगा कैसे? एनीबडी? अरे ला दो यार दीपांशु, बस हो गया ये खेल, ला दो 101 मार्क्स, 101th percentile ला दो, खत्म करो खेल को। So yeah, correct Dipanshu. So what happens, your percentile after the calculation, आपका percentile भी round off करते हैं। Yes, so if your score is above 99.995, अगर आपका score 99.995 से equal and above हो, greater than or equal to 99.95 and obviously less than 99.999, then you get 100th percentile. It is rounded off to 2 decimal points. Rounded off to 2 decimal points, मतलब 99
0.997 आया मेरे को, लेट्स से इफ दिस इज माय परसेंटाइल, देन इसको अगर मैं 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 से ज्यादा है ये, दिस इज मोर देन 5, सो दिस विल बिकम 100th परसेंटाइल। क्लियर है? पता नहीं नूब, अभी मेरे हिसाब से तो नहीं, बट आई डोंट नो अबाउट द प्रीवियस वन। सचिन 7 PM सचिन 7 PM we will be doing ratio proportion, average mixture alligation, time and work and time speed distance का cheat sheet। ठीक है, आ रहा है समझ में? एंड इफ योर स्कोर इज अबाउ 99.985 बट लेस देन 99.995 तो आपको 99.99 परसेंटाइल मिलेगा। Yes, let's say if your score is 99.987, yes, या even 99.994 है, अगर आपका स्कोर 99.994 है तो your percentile will become 99.99th percentile। समझ में आ रहा है? No Diksha, no, unless and until it's a a big disability, and when I say big I don't mean to say that any disability is small, but when we talk about the level of it, like you said yours is 20%, that shouldn't be that big of a hurdle at all. That shouldn't be a hurdle at all, in fact. Yes, because everything is digitalized now, everything can be changed according to you, so you don't have to worry about that. Okay Diksha? मैंने डिसाइड करा है कल नहीं पढ़ूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं दीपांशु। आप अपना दिनचर्या कैसे चलाते हो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर पूछोगे कि कोई आके पूछेगा, नंदिनी आके पूछेंगे कि सर मैं कल नहीं नहाने वाली हूँ इससे आपको कोई प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप अपना प्लान आपने कर लिया, अभी लास्ट मिनट में मैं आके कुछ भी बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अपना प्लान आपने कर लिया तो जस्ट स्टिक टू दैट। समझ गए? इज इट हार्ड और नो वन थॉट अबाउट इट? आप कर लो। हाँ रोहानी बोल रहे हैं कर लो, आप कर लो भाई। Be the pioneer, be the first one to do it। चलो डन। ठीक है चलो, विद दिस विल रैप दिस अप। सो आई होप आगे से अगर मेरे को कोई भी पूछेगा, ये लिंक मैं टैटू करा के रखेगा। अभी इस लिंक का मैं QR कोड बनाएगा, QR कोड में टैटू करके रखेगा। अगली बार मेरे को कोई भी पूछा कि श्योर ये इतना मार्क्स लाने के लिए कितना परसेंटाइल आता है, इतना परसेंटाइल लाने के लिए, मैं ऐसे बताएगा स्कैन कर ले भाई, स्कैन कर ले, मेरे को छोड़ दे प्लीज ठीक है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर CAT 22, इफ देयर इज एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, especially NMAT, अगर आप NMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, so these are batches exclusively for that, you can enroll into these। I understand कि सर ये तो CAT के एक दिन पहले लॉन्च हो रहा है, कैसे ज्वाइन करें? ज्वाइन कर लो, मे बी आफ्टर दैट 1 or 2 classes you can watch recording and continue with the rest। ठीक है so to enroll into any of those batches you will either have to take a plus subscription। If you use my code Surana Live, you will get a 10% discount upon doing it। Yes, so there are 6 months, 12 months, 18 months, 24-month packages, and you can also go for an iconic subscription। Same, you not forget to use my code Surana Live for a 10% discount। आइकॉनिक में प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ यू विल गेट 1-on-1 लाइव सेशंस विथ योर मेंटर। These sessions will help you not just clear any doubts that you have, but also with GD and PI। Okay? अगला 3 बजे, आधे घंटे में रोहानी 3 बजे नेक्स्ट क्लास है। वी आर डूइंग मॉडर्न मैथ पे।
वही तो बोल रहा हूँ नेहा, अभी एग्जाम होने के बाद ज्यादा आएगा। नेहा क्या बोल रहा हो, एग्जाम के बाद तो और भी ज्यादा आएगा। यस, तो मैं तो सोच रहा हूँ आजकल मैं जाके करवा ही लूँ टैटू। प्रिंस ले रहे हो 90 परसेंटाइल लाने के लिए कितना स्कोर करना पड़ेगा? थैंक यू सो मच प्रिंस। दीक्षा नो दीक्षा, सी okay chalo, this is specifically for Diksha and she's been asking this to me for a very long time. It all depends upon you. Unless and until you think that a problem that you have, a problem that only you have, or a problem that you have will affect your performance, will affect how much determination you have, if you think this will affect how much dedication you show, then yes, definitely this will be a problem. So it completely depends upon you, Diksha. Yes, I know you've been spending all these years around your problem, but now that you've asked me, let me tell you, if you do have a problem, it depends upon how you deal with it. Okay, a problem could be a problem only if you want it to be. Okay, Diksha, so if you think this will affect any of these, if this will affect how much heart you have towards your work, then definitely yes, I wouldn't say no. Otherwise it has nothing to do with that. Okay, I know it sounds a little too optimistic. Sir, I'm not asking for Instagram motivational quotes. I am asking for the reality. Trust me, it does look like a quote, but it is the reality. A problem is a problem only if you want it to be. Okay? You might have 99 problems, but your vision shouldn't be one. Okay? Chalo. Also, guys, there is an early bird offer. There is an early bird offer going on for people who are planning for the next year also. You can take up iconic or plus subscription courses. इसमें सब में आपको 10% मेरे कोड यूज करने पे मिल रहा है and additional 10% डिस्काउंट भी है. Yes, so this is valid till 30th November, मतलब 28th evening तक आप डिसाइड कर सकते हो कि what you want to do with this. 28th evening में आप डिसाइड कर लोगे कि आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है. ओके, आई डू नॉट मीन टू डीमोटिवेट यू गाइज, दिस इज मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली, बट देखो अगर लेना है तो 30th तक ऑफर है, ठीक है. There are so many, Rohani, there are so many people. Helen Keller is one of them, Jim Carrey is one of them. There's so many people you come across, people who have some or the other disability, but then they try to either live with it or they try to turn that into a strength, है ना? All right, Diksha, anytime. चलो guys, so yeah, this is something that we've been doing. अभी तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 days भी नहीं, आज का दिन तो आधा चला गया, 1 day left. But still, yeah, do join us for all these classes. You can enroll into a lot of special classes, strategy sessions and all that. ठीक है? I think tomorrow maybe we will do one session on time management also. Let's see, देखते कैसे. Okay? And also, if you are someone who has a doubt with respect to a question, sir, I was solving this question, I didn't get it, you can use the Ask a Doubt feature on the Unacademy's app. Any question that you have, just raise a query about it and you will get an answer to it. ठीक है? चलो guys, do not forget to share, like this video and subscribe this channel. I will see you all soon. Until then, keep learning. Let's crack it. 3 बजे को है नेक्स्ट क्लास. यू हैव व्हाट 10-15 मिनट्स. जाओ मस्त चाय वाय पी के आ जाओ, ठीक है? 3 PM को वी आर स्टार्टिंग मॉडर्न मैथ. ऑलराइटी गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट.